Hello guys, in this video we will discuss some miscellaneous MCQs on e-commerce. First question, predictive analytics is based on dash data to predict future customer behaviors and trends. Predictive analytics क्या होता है? Predictive analytics is a branch of advanced analytics that predicts future outcomes using historical data combined with statistical modeling, data mining techniques and machine learning. There are a number of types of predictive modeling. First is classification models, in which we will see logistic regression, decision trees, random forest, neural networks and Naive-Bayes. These are based on supervised. Second type is clustering models, and it is based on unsupervised. इस अनसुपरवाइज में हम लोग जिस एल्गोरिदम को यूज करते हैं वो है के मीन्स क्लस्टरिंग, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विथ नॉइज डीबी स्कैन, expectation maximization EM clustering using Gaussian mixture models, and hierarchical clustering. थर्ड मेथड है टाइम सीरीज मॉडल्स, जिसमें हम लोग ऑटो रिग्रेसिव, AR, मूविंग एवरेज, ARMA और ARIMA मॉडल्स को यूज करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर तीन मेन मॉडल्स हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, क्लस्टरिंग मॉडल्स एंड टाइम सीरीज मॉडल्स. इसके अंदर जिस एल्गोरिदम को हम लोग डिस्कस करते हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, Naive-Bayes एटसेट्रा. और क्लस्टरिंग मॉडल्स हमारा अनसुपरवाइज्ड होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमारा सुपरवाइज्ड होता है. अनसुपरवाइज के अंदर हम जिस मॉडल्स को और जिस एल्गोरिदम को हम लोग यूज करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग, एंड दीज आर द डिफरेंट एल्गोरिदम्स that are used in clustering models. टाइम सीरीज मॉडल्स के अंदर में ये सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं. यहाँ क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज बेस्ड ऑन. यहाँ से हमको आंसर मिल जा रहा है कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमारा हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, हिस्टोरिकल डेटा. Second question, which CRM technology is cost effective for small to medium sized businesses? कौन सा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दैट इज CRM टेक्नोलॉजी बेस्ड है? वैसे तो ये सभी हैं, बट इसमें जो सबसे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है वो है जोहो. इस जोहो की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है. जोहो CRM is a leading CRM solution for budget-minded brands and business owners. The Zoho platforms offers cloud deployment options along with Naive, Android and iOS apps to provide easy access to customer information in the field on the go. Zoho CRM also offers standard plans that are less than most, with robust features that include industry-leading AI technology and sales forecasting tools. There are machine learning algorithms designed to help improve CRM and other areas of your business as well. Zoho CRM can be integrated with several other software solutions and platforms. It fits seamlessly into any tech stack and offers an affordable, scalable solution. Other CRMs, vTiger, Salesforce Essentials, HubSpot, Benchmark One, Method CRM, Agile CRM, Close, Fox, Salesman, ये सब हमारे डिफरेंट अदर मॉडल्स हैं जिसको कि हम CRM में यूज करते हैं. लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए हम लोग जनरली जोहो को यूज करते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, जोहो.
Third question, blank is one of the metrics to assess success of CRM strategy such as customer lifetime value and retention rates. इनमें से कौन सा मैट्रिक्स हम लोग इस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है केपीआई बी। केपीआई का मीनिंग क्या है? केपीआई stands for key performance indicator, is a standard measurement that demonstrates the effectiveness of your sales team in achieving important business objective. It also gives useful analytics to help sales personnel increase their productivity by measuring their performance regularly. For example, a sales manager wants to monitor the top 10 sales representative in terms of the average annual revenue each of them has achieved. He can easily accomplish this by creating a ranking style KPI by defining the average annual revenue as the KPI metric. Based on your industry requirement, you can choose from 5 different types of KPI styles. First is standard, second is growth index, third is basic, fourth is scorecard, and fifth one is ranking. For more details, you can watch this. You can see the details from this link. The next question is, which CRM is used to increase sales and increase the customer base? इन सारे CRM में से कौन से CRMs को हम लोग सेल्स को इंक्रीज करने और कस्टमर के बेस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं? यहाँ कई तरह के CRM दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए, सेल्स CRM. What is the function of e-commerce? Marketing, advertising, warehousing. ई-कॉमर्स का क्या काम है? तो ई-कॉमर्स में हम ये सारे काम करते हैं। मार्केटिंग का भी काम होता है, एडवर्टाइजिंग भी होता है, वेयरहाउसिंग भी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. The next question is, the combined plan which requires setting up an objective for the long term, finding a time of action and allowance of resources is known as policy, strategies, procedure, program. The correct answer is B, strategy. Which among the following is not an example of search engine? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? MSN हमारा सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है. यहाँ पूछ रहा है नॉट, सो ये तीनों तो हमारे सर्च इंजन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. What refers to buying and selling goods and services on a large scale? लार्ज स्केल पर सेल और सर्विस के लिए हम लोग किस को यूज करते हैं? फर्स्ट, मार्केट शॉपिंग, सेकेंड, रिटेलर, सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड कॉमर्स. इट्स करेक्ट आंसर इज डी, कॉमर्स. गोल्फ स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? गोल्डन फैक्टर, गोल्डन ऑफलाइन फैक्टर, गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लोकल फॉरेन, नन ऑफ द अबव. इट्स करेक्ट आंसर इज सी, गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लोकल फॉरेन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिकली डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, electromotive device input. Its correct answer is B, electronic data exchange.
Next question, how is e-commerce related to e-business? ई-बिजनेस से ई-कॉमर्स किस तरह से रिलेटेड है? ई-बिजनेस ब्रॉडर एरिया में हम यूज करते हैं और इसका एक पार्ट होता है हमारा ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है और ई-बिजनेस होल पार्ट है जिसके अंदर मार्केटिंग शॉपिंग ये सारी चीजें होती हैं, ई कॉमर्स भी होता है। तो हमारा ई कॉमर्स ई बिजनेस का अंदर है, इसलिए ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, सबसेट। The next question is the RATAR. The full form of RATAR is reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. Model is used for quality, IT quality, service quality, performance quality, transport quality. Its correct answer is B. सर्विस के लिए हम लोग सर्विस क्वालिटी के लिए हम रटार को यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट एनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? इंटरेक्टिविटी, ग्लोबल रिच, रिचनेस, यूबिक्विटी। द करेक्ट आंसर इज बी, ग्लोबल रिच। Next question, servers are computers that provide resources to other computers connected to a client, mainframe, supercomputer, network. हमारे किसी सिस्टम में जब सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक नेटवर्क क्रिएट करता है। ये कनेक्शन हमारा वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सर्वर्स, इसमें से एक सिस्टम ऐसा होगा जो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर। यदि ये हमारा सर्वर है तो ये सर्वर अदर कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लाइंट के लिए है या मेन फ्रेम के लिए है, सुपर कंप्यूटर के लिए है या नेटवर्क के लिए है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज नेटवर्क। अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड ए। किसी वेबसाइट को देखने के लिए जिस प्रोग्राम को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट एक्सेल के लिए, वेब व्यूअर दूसरे काम के लिए होता है, लेकिन प्रोग्राम वेबसाइट्स को देखने के लिए जिस प्रोग्राम को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्राउजर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। What is the full form of FSND? FSND stand for first second normal display, file saving not discarded, file saved not displayed, fast slow normal dead। FSND ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और इन्वेंट्री कंट्रोल में कई डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं जैसे ABC, FSND और भी अदर मॉडल्स को हम लोग यूज करते हैं। ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है फास्ट स्लो नॉर्मल डेड। वैसे आइटम्स जो काफी डिमांड में हो उसको फास्ट कहेंगे, जो उससे कम है वो स्लो होगा, जो नॉर्मली यूज होते हैं उसको नॉर्मल, और जो कभी कभी रेयरली डिमांड होते हैं वैसे आइटम को डेड आइटम कहते हैं। तो इन्वेंट्री रखने के लिए जिस आइटम का मैक्सिमम डिमांड हो उसको फास्ट कहेंगे, कम के लिए स्लो। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, फास्ट स्लो नॉर्मल डेड। The next question is in EOQ, economic order quantity, annual carrying cost per unit is equal to
into price of 1 unit. कैरिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट हमारे ईओक्यू में यूज होते हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट आर द वेरियस कॉस्ट a business pays for holding inventory in stock. Examples of carrying costs include warehouse storage fees, taxes, insurance, employees cost, and opportunity costs. Businesses can reduce their carrying cost by implementing efficient warehouse design and by using computerized inventory management systems to keep track of inventory levels. ये कैरिंग कॉस्ट का डेफिनेशन है। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट का डेफिनेशन होता है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट also known as annual holding cost is the total cost of storing inventory over a year. It is a key component of the economic order quantity calculation which helps businesses balance the cost of carrying inventory with the cost of ordering inventory. The next question is SERVQUAL model is used for IT क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्ट क्वालिटी। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसके पहले भी एक हम लोगों ने देखा था, इसी तरह का क्वेश्चन था रटार में। रटार भी हमारा सर्विस के लिए यूज होता है और सर्वक्वाल भी हमारा सर्विस के लिए यूज होता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी सर्विस। सर्वक्वाल क्या है? द renowned SERVQUAL model is developed by Jethmal, Parasuramon and Berry in the 1980s. Remains a highly esteemed framework for evaluating service quality. According to this model, the distance between a customer's expectations and their actual perceptions greatly influences service quality. It encompasses 5 crucial dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. टेंजिबल्स का क्या मीनिंग है, रिलायबिलिटी की क्या मीनिंग है, ये दी हुई है। और इसके बारे में डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।